The next chapter is simplification of numerical expressions. We already know the mathematical operators. In lower classes, we have read about the mathematical operators. First operator is operator of addition, and it is denoted by sign, this sign. First operator है operator of addition, इस साइन से दिखाते हैं. Second operator is operator of subtraction, shown by this sign. Third operator is operator of multiplication, shown by this sign. And fourth operator is operator of division, shown by this sign. Now question arises, what is numerical expression? Numerical expression किसे कहते हैं? So a mathematical expression having two or more operations together is called numerical expression. ऐसा mathematical expression जिसमें दो या दो से ज़्यादा operations एक साथ उपस्थित रहते हैं उसे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए 30 इंटू 16 माइनस 10. यहाँ पर तीन नंबर हैं 30, 16 एंड 10. Between 30 and 16 there is operator of multiplication. This is first operator of multiplication. Second operator present here is operator of subtraction between 16 and 10. यहाँ पर तीन न्यूमेरिकल नंबर्स हैं 30, 16 और 10. 30 और 16 के बीच में एक ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन का, और 16 और 10 के बीच में दूसरा ऑपरेटर है सब्ट्रैक्शन का. तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. सेकंड एग्जांपल 9 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 इंटू 2. यहाँ पर 9 और 3 इसके बीच एक ऑपरेटर ऑफ डिवीज़न है. 3 एंड 6 के बीच एक ऑपरेटर ऑफ एडिशन है. 6 एंड 2 के बीच ऑपरेटर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है. To solve the numerical expression, we follow simplification rules in this sequence. First, we solve division operation. After that, we solve multiplication operation. Then we solve addition operation. And at last, we solve subtraction operation. So the sequence of operations are division, then multiplication, addition, then subtraction. If we take first letters of all these operators, it gives DeMoss rule. न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए वी यूज़ डीमॉस रूल. डी फॉर डिवीज़न, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन. इट इज़ नोन एज डीमॉस रूल. फर्स्ट वी डू डिवीज़न, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन. इसी क्रम में हमको ऑपरेशन को करना है. पहले डिवीज़न करेंगे, फिर अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो करेंगे, फिर उसके बाद एडिशन करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे. किसी किसी एक्सप्रेशन में ऐसी भी ज़रूरत पड़ती है कि हमको टर्म्स को साइन के अकॉर्डिंग रीअरेंज करना पड़ता है. तो यहाँ पर एम और ए मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के बीच में एक और ऑपरेशन हम जोड़ लेते हैं और वो होता है रीअरेंजिंग ऑफ द टर्म. तो अब जो डीमॉस रूल है वो कन्वर्ट हो गया डम्ब्रास रूल. डी फॉर डिवीज़न, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, आर फॉर रीअरेंजिंग, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन. डम्ब्रास रूल. दिस रूल can be remembered by a poem. And the poem for solving numerical expression is: first do division, then multiplication, after rearranging add, then subtraction. So we can remember it. Sing with me. First do division, then multiplication, after rearranging add, then subtraction. In this poem, अगर आप पोएम को इस तरह से याद करेंगे तो ये सीक्वेंस आपको याद रहेगा. डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, rearranging of the term, addition and subtraction.
Worksheet 1, question number 1a. Solve 3 into 2 plus 8 minus 5. Here there are three mathematical operators: operator of multiplication, operator of addition and operator of subtraction. इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में तीन ऑपरेटर्स हैं, 3 और 2 के बीच ऑपरेटर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इन बिटवीन 2 and 8 operator of addition, and in between 8 and 5 operator of subtraction. So according to De Moss rule, first we divide, but operator of division is absent. पहला De Moss rule के अनुसार डिवीज़न आता है, लेकिन यहाँ पर डिवीज़न नहीं है, तो उसके बाद क्या करेंगे? डिवीज़न के बाद है मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन इज प्रेजेंट हियर, 3 multiply 2. तो फर्स्ट वी सॉल्व दिस. 3 2s are 6. ये सॉल्व हो गया. पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s are 6. उसके बाद आता है एडिशन. तो यहाँ पर देखो, ये 6 पॉजिटिव नंबर है, 8 भी पॉजिटिव नंबर है, तो इनको पहले ऐड करेंगे. 6 + 8 इज 14. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे. 14 - 5 इज 9. तो 9 इज द आंसर. क्वेश्चन बी. 18 + 4 × 6 डिवाइडेड बाय 2 - 9. यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में चारों ऑपरेटर्स है. बिटवीन 18 and 4 देर इज ऑपरेटर ऑफ एडिशन. बिटवीन 4 and 6 देर इज ऑपरेटर ऑफ मल्टीप्लिकेशन. बिटवीन 6 and 2 ऑपरेटर ऑफ डिवीजन. बिटवीन 2 and 9 ऑपरेटर ऑफ मल्टीप्लिकेशन. चारों ऑपरेटर यहाँ पर उपस्थित हैं. तो डी मॉस रूल के अनुसार पहले हम करेंगे डिवीजन. तो डिवीजन कहाँ पर है? बिटवीन 6 and 2. तो डिवाइड 6 by 2. 2 3s are 6. तो when 6 is divided by 2, it is quotient is 3. 6 को 2 से डिवाइड करने पर मिला 3. अब डिवीजन हट गया. अब यहाँ पर क्या बचा? प्लस, इंटू और माइनस. तो इसके बाद क्या आता है? आफ्टर डिवीजन इट इज मल्टीप्लिकेशन. तो 4 × 3. 4 3s are 12. इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे. 4 3s are 12. अब क्या बचा? प्लस और माइनस. तो यहाँ पर भी दोनों पॉजिटिव नंबर एक पास है. 18 पॉजिटिव है, 12 भी पॉजिटिव है. बिकॉज बोथ 18 and 12 आर पॉजिटिव, सो वी ऐड. 18 + 12 इज 30 - 9, and 30 - 9 is 21. This is the answer. Question number C. 14 + 28 divided by 7 into 3 - 17. Here also all 4 operators of mathematics present here. यहाँ पर भी चारों ऑपरेटर प्रेजेंट हैं. तो डी मॉस रूल के अनुसार पहला ऑपरेशन होता है डिवीज़न का. तो पहले देखिए, डिवीज़न का ऑपरेटर किसके बीच है? बिटवीन 28 and 7 here operator of division is there. So first we divide 28 by 7. So when we read the table of 7 up to 4 times, it gives 28. So when 28 is divided by 7, it gives 4. Now the expression becomes 14 + 4 into, ये जो इंटू है इसको वैसे ही लिखेंगे, इंटू 3 - 17. डिवीज़न हो गया. डिवीज़न सॉल्व होने के बाद अब आता है मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है 4 और 3 के बीच. तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे. पहले 4 × 3 is 12. मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर भी हो गया. अब बचा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का. तो पहले हम ऐड करेंगे. 14 + 12 = 26 - 17. अब इस 17 को 26 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 26 - 17 = 9. ये आंसर. इसके नाउ द क्वेश्चन इज डी. 8 - 2 × 10 divided by 2 + 2. So here all 4 operators are there. First we solve division. 10 divided by 2. 10 divided by 2 is 5. When 10 is divided by 2, it gives quotient 5. After division we solve multiplication. So 2 multiplied by 5. Then we solve this. 2 multiplied 5 is 10. 2 5s are 10. Now in this expression, here 8 is positive number, 10 is negative number,
and 2 is पॉजिटिव नंबर। यह इस एक्सप्रेशन में दो ऑपरेटर है, माइनस और प्लस, लेकिन नंबर जो हैं 8 पॉजिटिव है, 10 नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है। नंबर्स के सामने जो साइन लिखा रहता है ये इसका नेचर बताता है। तो 8 इज पॉजिटिव, कुछ नहीं लिखा है मतलब 8 पॉजिटिव है। 10 के आगे माइनस साइन है तो 10 नेगेटिव है, और 2 के आगे प्लस साइन है तो 2 पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू साइन रीअरेंज द टर्म्स। साइन के अनुसार पॉजिटिव पॉजिटिव को एक पास लिखेंगे और नेगेटिव नेगेटिव को एक पास लिखेंगे। तो 8 और 2 दोनों पॉजिटिव नंबर है, इनको एक पास लिखा। 8 + 2 डिवाइडेड -10, फिर 8 + 2 -10, पॉजिटिव एक पास आ गए, नेगेटिव अलग हो गया। अब ऐड करेंगे, 8 + 2 is 10, 10 - 10 is 0, so 0 is there. Question number E, 25 divided by 5 into 8 plus 6 minus 12. Here all the four operators are present. So according to De Moivre's rule, first we solve division. 25 divided by 5 is quotient is 5. Now division is solved. After solving division, we solve multiplication. 5 into 8 is 40. After multiplication, addition and subtraction are left. So here both the positive numbers are together. यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव, 40 भी पॉजिटिव है, 6 भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव एक पास हैं, तो रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। Add 40 + 6 is 46. Then subtract 12 from 46. 46 - 12 is 34. This 34 is the answer. Question number F, 27 - 9 + 4 into 5. Here division is not present. डिवीज़न का ऑपरेशन नहीं है, तो डिवीज़न के बाद क्या आता है, डिवीज़न के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। तो वी सॉल्व दिस मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट। 4 into 5 is 20, और 4 के पहले जो साइन है वो लिखेंगे। देन यहाँ पर रीअरेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। 27 इज़ पॉजिटिव नंबर, 9 इज़ नेगेटिव, 20 इज़ पॉजिटिव। तो रीअरेंज द टर्म्स अकॉर्डिंग टू साइन। पॉजिटिव पॉजिटिव को एक पास लिखेंगे, नेगेटिव को अलग लिखेंगे। 27 + 20 - 9, 27 + 20 is 47, 47 - 9 is 38, 38 is the answer. Question number G, 17 into 3 plus 81 divided by 9 minus 60. All four operators are present here. So first, according to De Moivre's rule, first we solve division. 81 minus 81 divided by 9. 81 is when divided by 9, it gives quotient 9. Then after solving division, we solve multiplication. Sign of multiplication is between 17 and 3. So first we solve this. 17 3s are 51. Then after solving multiplication, two signs are left, operator of addition and operator of subtraction. Here positive numbers are together. पॉजिटिव पॉजिटिव एक पास है, नेगेटिव अलग है, तो रीअरेंज करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। 51 और 9 को ऐड करेंगे, आएगा 60। फिर उसके बाद एडिशन के बाद करेंगे सब्ट्रैक्शन। 60 - 60 हो गया 0। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर H, 7 - 42 7 - 42 divided by 3 plus 16. So here first we solve division. When 42 is divided by 3, it gives 14. After division, see here 7 is positive number, 14 is negative number, 16 is positive number. So it requires rearrangement of the terms. So on rearranging the terms, it gives here 7 is positive number, 14 is negative number, and 16 is positive number. So on rearranging the term according to the sign, पॉजिटिव और पॉजिटिव को एक पास लिखेंगे और नेगेटिव को अलग लिखेंगे। 7
प्लस 16 इज इक्वल टू 23 और फिर 23 माइनस 14 इज इक्वल टू 9 जो है आंसर होगा।